This conference will now be recorded. Welcome to DRTSPR, that means Dr. Tangella Shivaprasad Reddy Show. DRTSPR show. I am Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Dr. Jignesh Gokani. I've already introduced you, but to recap, he's a Sujok master, and you see, he comes with Come for Lives, and then he has been practicing acupuncture, and then he is a resource person for various things, including Sujok. And also he is committed to create Swasthya Bharata, which is being dreamt by our Honorable Prime Minister. Incidentally, Mr. Narendra Modi is touring Andhra Pradesh and Telangana on this day when we are trying to do this live show. So his dream, he wanted to make it true, come true. How? He want to have an integrated Indian medical system wherein our Ayurveda to nature cure to sujok or whatever you say, all our traditional therapies put together. Why? To relieve pain. तो जिग्नेश गोकानी जो है हमारे प्राचीन संस्कृति की जो है आयुर्वेदा हो या परभाषा हम कहते हैं, जब स्वास्थ्य हो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका स्वास्थ्य जब बिगड़ना शुरू होता है तो हमारे पूर्वजों ने हमारे संस्कृत के तहत पर सब कुछ हमने दिया है, लेकिन एक ही चीज क्या है, हम उसको जानने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो इसीलिए यह शोध के द्वारा हमारे प्राचीन संस्कृति के द्वारा किस तरह हम अपने स्वास्थ्य बनाए रखे और सब कुछ हमारी पूर्वजों ने हमें दिया है और उसका मेल करते हुए किस तरह ये वर्तमान और भविष्य में हम एक स्वास्थ्य की जीवन बिता सके ताकि हम खुश रहे। जब खुश रहो आप, सब कुछ खत्म हो जाएगा। సంతోషం సగం బలం. సంతోషంగా ఎట్లా ఉండాలనేది మన ప్రాచీన సంస్కృతి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ విద్య, వైద్య విధానాలు ఏవైనా కావచ్చు, నివారణ కావచ్చు, చికిత్స కావచ్చు, వాటన్నింటి మేలువ నుంచి ఆ సంస్కృతిని ప్రజలకు ఇవ్వాలనే ఒక ఉద్దేశం. ఇక్కడ భారత ప్రధానమంత్రి కూడా ఒక కలగా అన్నాడు కాబట్టి స్వస్థ్య భారత్ దాంట్లో భాగంగానే డాక్టర్ జిగ్నేష్ గోకాని గారు ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నారు. కమ్ ఫర్ లైవ్స్, మనం संतोषंगा उन्दाम, जीविस्ताम, हम संतोष के साथ हमारी जीवन बिताएंगे। क्योंकि पिछले हम जो किया है अन्नमय कोश, हम वहां पर रुक गए। निर्वाणा स्तोत्र जो अहम भूमि है, हम आदि शंकराचार्य की बात करते हैं। आई एम सन इन लॉ ऑफ द ग्रेट लैंड ऑफ केरला, फ्रॉम वेयर आदि शंकराचार्य comes out. द्वैत्वम अद्वैत्वम. What is द्वैत्वम? Your soul and yourself are different. Advaitvam, your soul and yourself are one. That means Atma Paramatma. The way you take what is Atma, what is Paramatma, once you understand, that is life. So Adi Shankaracharya, he has tutored that. So that Nirvana mantra, how it is going to influence our physiological senses in the body. Physiological senses, the way I am looking, how? Because of the anatomy, the bones. The bones culture making physiological, the functions of the body work. What is the connection between the existing body, anatomical body, the physiological body, and the way you look at me with our ancient traditions? That is the beauty of our culture. Everything is there on an ancient culture. The only thing is understand, relate it, so that you will come out of all sicknesses, mental to physical to otherwise stress, everything you can come out. Everything is there in our thing. Why do you go to a temple? Why do you go for an yatra? That again, I will try to tickle his mind later on. Everything embedded in our culture. Such a wonderful ancient civilization. So we are proud to present Dr. Jignesh Kokani from where we stopped last time. Nirvana mantra. Now we are going ahead. We'll just give you an insight and then start. Shall I make you presenter, Dr. Jignesh ji? Yeah, please go ahead. Am I audible? Yes, sir. Wonderful. Go ahead. Because from my side, your screen is little stuck. But am I audible? My screen is moving well. Yeah, it is moving some. Now I made you a presenter. Go ahead. Okay. So before I start,
I would like to say something on what is the difference between a human being and the animal. I mean, as Adi Shankaracharya, he has defined the whole existence, including health and the concept of anatomy physiology. But I want to say something which is very common between animal and human being. Is my presentation visible, sir? No, not yet. I'm just trying to get you onto the presentation mode. I think there is, Okay. as you rightly said, your camera is really struck. Yeah. I'm not able to watch your. I even clicked active cameras and then I'm going for who is Just a talking. minute. My camera is not able to. Once your camera is visible, now it's okay. Fine. Go ahead, sir, without any delay. Uh-huh. Now, is it visible? Yes, very much. Please go ahead. Uh-huh. And how about my like presentation is also visible? No, you just click that present share button. You have to click with sounds. You say Okay. Okay. Just a minute. I'll just share the click on screen this down. It is button. there. You just share the screen with media sounds. Then the Okay. audio, video, everything will play. Now you are visible. Try to share the screen. Okay. Just a minute. I think again my screen is getting stuck. The last time also there was some problem. I think in the high They are hacking. speed They of. are hacking. Swami. They are hacking. What to say? See, that is why I went to the court. Also filed phone tapping. This hacking. This Correct. is very, very, very bad on their part. We are Correct. discussing Correct. something which is logic, which is truth, and which is our ancient tradition. That is our freedom. Even that also they don't want to divulge. True. 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 I agree. How the commercial Uh, markets, pharmacy or insurance, they are trying to control. That is very bad. See, it integrated medicine. That is more Correct. important. We Yeah. integrate because we have nothing against anyone. Yes. We want science, logic, and truth to come out. So that it is the choice of the people. I clicked on this share, but it's not Yeah. allowing me to take a share. I mean, share system audio is accepted. No, no. When you say share, along with that, media sounds button will be there. Click that also. Uh, just When you share, uh, then it will ask a media sounds button. Then you go to the screen where it is, where your PPT is. Is it yeah, on the no, desktop? no, but yet I'm unable to share itself because it is showing me I'm clicking on the media sound, but Then then I'll after try. that, what the button should click is the share. Yeah. So instead of share, it is just showing me the cancel button. It is not giving me the No, no, option of no, you share. cancel it. Then you cancel it. First, you have to press share button. As soon as you open the Okay. screen, then will come media sounds. Tick that also, Uh, and then you go to okay. the screen. You go to where it is. Is there on desktop or Google, wherever it is? It will show you. Go there. That is simple, sir. No, I mean, when it is showing me to choose what to share, entire screen, window, or Chrome. So the moment I'm No, going to the where is Chrome that? tab, Where is it it? is Is there on it my Chrome or laptop, desktop itself. I've you already go to the kept it desktop? ready. Desktop. You go to the desktop. Uh, What is there? Chrome. the Chrome tab is there. Hmm. In that, all this available, but windows are there. Here it is. Yes. Okay. Yes. Now Yeah. I think it's visible. Yes. Yes. Go ahead now. Okay. So as I was talking about that, when we want to talk about what is a common between animal and a human being. So four things are very common. We have a shloka which goes like Ahar Nidra Bhaimai Thunanch Samanya Etat Pasubhi Shamana. Arthat Ahar, food, Nidra, sleep or rest, Bhai, a fear, and Maithun or Sangati, what you call as Sahajivan, Sahacharya. This is all common in animal and human being also. There is no difference into that. So, ahar, nidra, bhai, thunancha, samanya etat pasubhi shamana.
धर्मो हितेषां को अधिक मार्गे कर्मानुगोगच्छति जीवैका. It means that only few people, they know their dharmas, and based on their dharmas they decide what they should do and what they should not do. And that is how the animal instinct and human instinct is being differentiated. So I wanted to start with this because ultimately what Adi Shankaracharya ji has spoken about, that how to evolve from the animal instinct to the divine instinct or to the devatva, or how to become a human being. That is what is a whole Neti Neti or Nirvana Stotra base. But before I go to that, I just want to add few more things. I want to, for the sake of your viewers, generally in everything in our Sanskrit or in our Sanskriti, everything is written with very much logic. Nothing is just by fluke. For example, how many yugas we have? So we have four yugas: Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. Why only four? Why not five? Why not You six? Or click why on that. not? You click on that slide, Swami. You click on this slide. Yeah, Satyuga, I Treta Yuga. already. Yeah, It is it's not already there. The slide is not visible. not visible. That's what I said. Just it is only the first slide which is there seen. Ah, yeah. Now it is there. Yes, wonderful. Okay. How many yugas we have? Go ahead, sir. Please. Yeah. So how many yugas we have? So we have got four yugas: Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. So why only four? I'll give you one more. How many Vedas we have? So again, we have only four Vedas: Samved, Rigved, Yajurved, and Atharvaved. Again, why only four Vedas? Why not five? Why not three? Click that. Click. Change that. Now we still Yeah. have only. Okay. Yeah. Now Now, it is brand. No, no. Go to the earlier yeah. one. Vedas. Yes. 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 So we have got four Vedas: Samved, Rigved, Yajurved, and Atharvaved. Right? Yeah. Now, if we go to the next slide, that means if we talk about Varnas, so again we have got four kind of Varnas defined by Sanatana Sanskriti. Most of the time, this has been very wrongly defined by majority of the people as a caste. लेकिन ये कास्ट सिस्टम है ही नहीं. हमारे समाज के अंदर, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर चार प्रकार के कर्म कहे गए हैं. एक होता है ब्राह्मण का कर्म, जो जिसका कार्य होता है सबसे ज्यादा नॉलेज लेना और नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना. ये काम सिर्फ ब्राह्मणों का होता है. यानी पुराने जमाने में अध्ययन करना, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करना, और अध्ययन करके क्या सही है और क्या गलत है ये स्थापित करने का काम जो भी करता है उसको ब्राह्मण कहा जाता था. तो ये नहीं है कि क्षत्रिय जो कैस्ट होता वाइज ब्राह्मण नहीं है. ब्राह्मण सुपीरियर जो दिखाई दे रहा है आजकल, ये गलत है. व्हाट दे आर है ये ट्राइंग टू गलत शो है, ब्राह्मण बाय कैस्ट, दैट वो इज रॉन्ग. बिल्कुल गलत है. ब्राह्मण का राइट. मतलब ये होता है वो आदमी जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के बेटरमेंट के लिए, समाज की भलाई के लिए जो स्टडी करता है, और स्टडी करके जो लोग इग्नोरेंट है उन्हें जो एजुकेट करता है उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था. सो He एक can be from पर्टिकुलर any कास्ट, caste or religion. He can be any from any caste फ्रॉम or एनीवन, religion in this any context. caste, any religion, anybody who is Right. aspirant to learn. जो Right. आदमी अपने आप को इंटेलेक्चुअली ग्रो करना चाहता है उसको Right. ब्राह्मण कहा जाता था, Wonderful. ब्रह्मदेव जिसको कहा जाता था. और ज्यादातर ये पुराने जमाने में एक व्यवस्था होती थी कि मेरे पिताजी जो काम करते थे मैं भी वही काम करता था. तो उस तरीके Hmm. से परंपरा फैमिली में चलती थी, बट उसके लिए कोई बैरियर नहीं होता था. जैसे कि अगर हम बात करेंगे क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का कर्म कर्म क्या होता था? तो क्षत्रिय जो थे वो हमेशा युद्ध करते थे. तो उनका कार्य होता था लोगों को प्रोटेक्शन करना. यानी आज के जमाने के हिसाब से देखें तो आज की जो पुलिस है या आज की जो आर्मी है उसे आप क्षत्रिय कह सकते हो. Right. फिर वो नेवी भी हो सकती है, आर्मी भी हो सकती है, एयरफोर्स भी हो सकती है. लेकिन Wonderful. जहां पर समाज की पूरी जनसंख्या को बाहर के आक्रांताओं से जो रोकने वाले जो लोग होते हैं और हमारे खुद के लोगों को जो प्रोटेक्शन देने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा गया था. यानी क्षत्रिय Right. कास्ट या वर्ण नहीं होता था, लेकिन जो भी समाज के लोगों की भलाई के लिए युद्ध करता था वो क्षत्रिय होता था. कभी कभी किसान भी युद्ध करते थे तो वो भी उस समय के लिए वो क्षत्रिय हो जाते थे. जैसे अगर आपने सुना होगा तो शिवाजी के साथ जो तानाजी थे वो तानाजी Hmm. ओरिजिनल फार्मर थे, लेकिन Hmm. अल्टीमेटली वो युद्ध करते थे इसलिए वो भी क्षत्रिय धर्म में आ जाते थे. तो उनका जो धर्म था वो धर्म क्षत्रिय का था, क्षत्रिय का था. जो तीसरा जो वर्ण होता था उसका काम होता है वैश्य. वैश्य अर्थात वो लोग होते हैं जिनका काम ये है कि समाज के अंदर
कोई भी चीजों की जो जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं आपूर्ति करना, यानी समाज के अंदर खाना पीना, कपड़े, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, ये सारी चीजों की जो जरूरत पड़ती है, और इन सारी चीजों को कहीं से आपको मंगाना पड़ता है, कहीं पर सप्लाई करना पड़ता है, ये जो विनिमय का जो काम करता है उस कम्युनिटी को, उस Needs. The one who produces needs. या हु प्रोड्यूसर, हु इज सप्लायर, ही मे नॉट बी And प्रोड्यूसिंग, मतलब वो जैसे वो supply. किसान से, हाँ वो सप्लाई करता है बेसिकली ट्रेडर आप सॉरी, Right. आप उसे ट्रेडर कह सकते हो, Wonderful. या जिसको आप व्यापारी कह सकते हो, बिजनेसमैन कह सकते हो। उसका काम ये है कि समाज की जो भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसे इन्वेस्टमेंट से कुछ चीजें बाहर से लेकर आएगा, और समाज में Right. वो चीजें देकर उसमें 1 रुपए में से 1 रुपए 25 पैसा, 1 रुपया 30 रुपए पैसा थोड़ा सा उसमें से कमाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर कास्ट होता था उसको बोलते थे वैश्य, अर्थात बिजनेस कम्युनिटी। Right. और चौथा जो वर्ण होता था उसे क्षुद्र कहा गया था। क्षुद्र वो होते हैं जो लोग पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, अर्थात Hmm. उन लोगों को कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, जैसे आप ब्राह्मण को पैसों के देकर आप खरीद नहीं सकते हो, क्षत्रिय को भी पैसे देकर खरीद नहीं सकते हो। हालांकि जयचंद जैसे कुछ लोग थे जो पैसों के लिए लोगों को भी खरीदते थे और खुद भी बिकते थे, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय कभी भी पैसों और प्रलोभन से उतने ज्यादा नहीं बिकते थे जितने कि क्षुद्र लोग होते थे, जिसको आज हम सबसे लोअर कास्ट जो बोलते हैं। Hmm. जैसे ये वो होते हैं कि अगर आप उन्हें पैसा देंगे तो आपके किसान आपके खेत में आकर के काम करके जाएंगे, अगर आप उन्हें पैसा देंगे तो आपके घर में आके काम करेंगे, अगर आप उसे पैसा दोगे तो आपकी फैक्ट्री में आके काम करेंगे। तो ये जितने भी लोग होते हैं जो पैसे के एवज में अपनी जो स्किल है वो आपको जो देते हैं, उन सभी लोगों को क्षुद्र कहा जाता था। सो Employees. हाँ जी, Employees from any sector. या Skilled employees. इन Skilled employees. लार्जर पर्सपेक्टिव यू कैन से एम्प्लॉइज, यस यस। Skilled तो employees. हमारे या तो समाज के जो 4 पिलर होते थे, वो 4 पिलर के अंदर सबसे पहला होता था इंटेलेक्चुअल पिलर का, यानी कि वो जो पूरे समाज का मार्गदर्शन करता था उसे हम ब्राह्मण कहते थे। दूसरा पिलर होता था जो सब सब पूरे समाज का प्रोटेक्शन करता था, युद्ध के सामने हमारे अस्तित्व को बचाता था, हमारी मर्यादाओं को, हमारी बहन बेटियों से लेकर के पूरे समाज की व्यवस्था देखने का जो काम होता था वो क्षत्रियों का होता था। फिर समाज की जो जरूरतें होती थी उस जरूरतों को पूरा करना ये वैश्य अर्थात बिजनेस कम्युनिटी का काम होता था। और फाइनली इन तीनों को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग होते थे जो पैसों के एवज में इन सब लोगों के लिए काम करते थे, उन सभी लोगों को क्षुद्र कहा जाता था। सो दिस इज हाउ अ ब्रॉडली स्पीकिंग समाज वाज डिफाइंड, मतलब हमारे समाज की जो व्यवस्था है उसको इस तरह से वर्ण व्यवस्था कहा गया था। फिर ये कुल व्यवस्था किस तरह आज देखिए ना, कुल के बल पर एमएलए, कुल के बल कुल, पर एमपी, कुल के बल पर हाँ बिजनेसमैन ये जो क्या कुल है की, सब। हाँ हाँ, ये जो कुल की व्यवस्था है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग साउथ इंडिया में रहते हैं, तो तुलुआ वंश जो है, तो हम्म, तुलुआ वंश ने करीब करीब 500 साल तक विजयनगरम के ऊपर राज्य किया। हम्म, ठीक, अब 500 साल तक एक ही राजा तो नहीं रहा होगा, हम्म, एक राजा रहा होगा, उनके मरने के बाद दूसरा आया होगा, दूसरे के मरने के बाद हम्म, तीसरा आया होगा। तो हमारी व्यवस्थाएं ऐसी होती थी कि जैसे मैंने अपने पिताजी को काम करते हुए देखा है, तो मुझे पता है हम्म, कि एक राजा कैसे काम करता है, कैसे परिस्थितियां आती है और किस परिस्थितियों में किस तरह से वो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। और इसी प्रकार हर पिता अपने पुत्र को हमेशा ये सिखाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस प्रकार पुराने जमाने में जो परंपरागत व्यवस्थाएं जो होती थी उसे मैं बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक मानता था, क्योंकि बच्चों ने बचपन से उन्हीं चीजों को देखा है, उन्हीं चीजों को देख के जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें उन चीजों को करने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर महामंत्री का बेटा है तो वो भी बड़ा होकर महामंत्री बनेगा, सेनापति का बेटा है तो उसने पहले से अपने पिताजी को घर में युद्ध अभ्यास करते हुए देखा होगा, तो उसके बेटे के लिए युद्ध करना बहुत सहज हो जाता है। इस तरह से हमारे पुराने जमाने में कहा जाता था कि लोहार का बेटा लोहार होगा, सुनार का बेटा सुनार होगा, सुथार का बेटा सुथार होगा, कारपेट जो कपड़े बुनने वाला होता है, जैसे जिसको दर्जी बोलते थे, टेलर होता था, उसका बेटा टेलर होगा। तो ये एक हमारी व्यवस्था बनी हुई थी कि जहां पर एक पिता जब अपना समय 20 साल 25 साल का समय हो जाता है और उसका जब शरीर उतना अच्छे से काम नहीं करता है, तो तब तक में उसका बेटा आके उसको सपोर्ट सिस्टम करेगा और उस तरह से समाज की व्यवस्था चलती जाएगी। ये जो होता था ये कुल व्यवस्थाएं होती थी।
लेकिन आज जो हम कह रहे हैं वो तो डेमोक्रेसी है। सो डेमोक्रेसी के अंदर तो ये होता है कि जो आदमी समाज के लिए काम करेगा, जो आदमी समाज के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा, उसे समाज सिलेक्ट करेगी। या आप ये कहें कि हर 5 साल में जो इलेक्शन होता है उसमें हम इलेक्ट करते थे। पुराने जमाने में राजा को इलेक्ट नहीं किया जाता था, उसे सिलेक्ट किया जाता था। हालांकि उस सिलेक्शन के अंदर भी एक इलेक्शन प्रोसेस होता था। अगर आपने राम राज्य के बारे में अगर सुना होगा, तो भगवान राम को जब दशरथ जी उनका उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, तो उससे पहले उन्होंने साम्राज्य, गणराज्य, राज्य, इन सब के बड़े बड़े लीडरों को बुला करके उन सब की राय ली थी कि क्या मैं इसे एक राजा के हिसाब से क्या इसे प्रतिस्थापित करूं। और वहां पे भगवान राम ने ये आर्ग्यूमेंट किया था कि मुझसे अच्छा भरत इस शासन काल को संभाल सकता है, तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप लोग भरत को अपना राजा नियुक्त करें। तो हमारे वहां पे भी पुराने जमाने में वोटिंग सिस्टम होता था, क्योंकि एक ही राजा के जब 2-3 पुत्र होते थे, तो स्वाभाविक रूप से कौन ज्यादा उसके लिए उत्तराधिकारी है, कौन ज्यादा सक्षम है, इस बात का हमेशा क्राइटेरिया होता था। और वहां पर अगर आपने वो रामायण के अंदर बहुत अच्छे से रामानंद सागर जी ने इसको पिक्चराइज किया था, और बहुत अच्छे से वो जो गण थे, अर्थात जो रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग समाज के, अलग अलग स्तर के, उन्होंने राजा दशरथ को और भगवान राम दोनों को समझाया था कि क्यों भरत जी से ज्यादा उपयुक्त भगवान श्री राम खुद है। और इस प्रकार से उस जमाने में भी राजा बनने के पहले एक प्रोसेस होता था, और उस प्रोसेस को फॉलो करके ही किया जाता था। ये मुगलों ने आकर के, और खास करके जैसे औरंगजेब जैसे जब लोग आए, आक्रांता, कि वो खुद के ही भाई को मार करके अपनी गद्दी को हथियाना, या अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात करना, जयचंद जैसे लोग हो गए, या मुगलों के बाद ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। हिंदू राज्य के अंदर ऐसी बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी हिंदू समाज में उतनी ज्यादा कभी नहीं थी। अगर आप या चंद्रगुप्त मौर्य के समय को भी अगर देखेंगे, तो ओके वहां पे भी नंद वंश को जब चाणक्य ने खत्म किया, तो नंद वंश को एक नया रिप्लेसमेंट करके उसे मार करके रिप्लेस किया। ऐसा नहीं था कि उसको एक को राजा को मार दिया और उन्होंने पूरी गादी हथिया ली, ऐसा कभी नहीं राइट होता था। हिंदू राइट हिंदू समाज में कभी भी ये व्यवस्थाएं नहीं है। हिंदू समाज राइट में हमेशा समाज की जो व्यवस्था है, जो गरिमा है, उसे हम राइट कभी भी नष्ट नहीं करते। ये हमारी व्यवस्था पुराने जमाने से है। राइट नेक्स्ट स्लाइड सर। अब नेक्स्ट के ऊपर जब हम आते हैं, तो अगर हम हमारे जीवन स्तर की बात करें, यानी हर एक जीवन, हर ये भी एक हर इंडिविजुअल के लिए लागू होता है, कोई भी हो, चाहे राइट वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जब वो उसका जन्म होता है, तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में उसके जीवन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो राइट सबसे पहला होता है बचपन काल या बाल्यकाल जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करने का अनुरोध किया गया है। अर्थात उस समय राइट पे लड़का या लड़की शिक्षा ग्रहण करेंगे, अपने कामकाज को सीखेंगे। जब वो वयस्क हो जाते हैं, यानी 21 से लेकर 25 ईयर्स की उम्र के आसपास जब आ जाते हैं, तब उन्हें गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करना चाहिए। राइट अर्थात उन्हें अपनी शादी करनी चाहिए, फिर अपने बच्चे पैदा करने चाहिए, अपने घर को राइट संभालना चाहिए। जैसे ही वो राइट 50 साल की उम्र में आ जाते हैं, तो 50 साल की उम्र में जब आ जाते हैं, तब उनके बच्चे, चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो दोनों या 20-25 साल के हो जाते हैं, अर्थात वो शादी के लायक हो जाते हैं। तो राइट यहाँ पर हर एक इंसान का ये कर्तव्य है कि वो वानप्रस्थाश्रम में जाए, अर्थात वो बैक सीट ले ले और फ्रंट सीट पे अपने बेटों को या बेटियों को बिठाए कि अब आप लोग अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। और जहां पर हमारी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, जहां आपको लगेगा कि हमारी किसी एडवाइस की आपको जरूरत है, तो आप हमें हमेशा पाओगे। लेकिन राइट अगर आप हमें बिना पूछे ही करने के लायक बन जाते हो, तो हम लोग मानेंगे कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। और जैसे ही आप 70 प्लस क्रॉस कर जाते हो या 75 प्लस क्रॉस कर जाते हो, उसके बाद आप संन्यास आश्रम में आ जाते हो। अर्थात उस व्यक्ति को समाज, समाज की व्यवस्थाएं और समाज में क्या चल रहा है, इसके बारे में ज्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो बचपन से लेकर के 75 ईयर्स तक ये तो कर ही रहा था। अगर 75 ईयर्स के बाद भी अगर वो करता रहेगा, तो नए लोग जो आ रहे हैं, नई जनरेशन जो आ रही है, उसे काम करने का मौका कैसे मिलेगा। इसी वजह से अगर आपने देखा होगा, तो इस बार नरेंद्र मोदी जी ने आई थिंक लास्ट 2019 के इलेक्शन में एक नई घोषणा की थी कि 75 ईयर्स के प्लस वाले जो भी लोग हैं, जो भी लीडर हैं, अब उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, अर्थात उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया जाएगा।
क्योंकि एक आदमी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 टर्म से 4 टर्म से 5 टर्म से बना हुआ है, अब वो एक तरह से उसमें ढब उसमें हो चुका है, उसे भी तो Right. नेक्स्ट जनरेशन तैयार करनी है, क्योंकि कल वो समाज में नहीं रहेंगे तो उनके पीछे समाज सेवा करने के लिए भी अच्छे लोग होने चाहिए। ये भी लीडरों की खुद की व्यवस्था है कि दे शुड, मतलब उन्हें ऐसे अपने जैसे लीडर बनाने चाहिए जो उनके पीछे उसी व्यवस्था को कंटिन्यू कर सके। सो ये हमारे समाज में, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। Right. Next, sir. Wonderful. सो यहां से अब हम शुरू करते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने जीवन के बारे में क्या कहा। चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो मैं हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा इसको करना चाहूंगा। सो मैं Right. पहले जो आदि शंकराचार्य जी ने जो कहा है उसको पहले सुन लेते हैं और उसके बाद Right. फिर उसका मैं विश्लेषण करता हूँ या उसके बारे में हम Right. लोग बात करते हैं कि निर्वाण स्तोत्र या जो नीति नीति भी जो कहा जाता है ये क्या है। Right. प्ले कीजिए सर। हाँ प्ले हो रहा है, एक्चुअली वो हाइपर लिंक्ड है। एक मिनट। एक मिनट। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हेलो। Yeah, stop now. In one line. हाँ Yeah, तो go ahead. सो हाँ सो आदि शंकराचार्य जी ने जो कहा था इस निर्वाण स्तोत्र के अंदर, वो यही कहा था कि जो पूर्ण है अर्थात जो भगवान है वो पूर्ण है, और पूर्ण में से हमारी जो उत्पत्ति होती है, हम जो इस दुनिया में जितने भी जीव आते हैं उन सभी जीवों के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा उसी का स्वरूप है, यानी उसी पूर्ण में से हमारे भी उत्पत्ति हुई है। तो पूर्ण में से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई, इसलिए हम लोग भी पूर्ण हैं। और मतलब जो श्लोक अगर उसको मैं फिर से पढ़ूं तो ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात वो कंप्लीट है, वो परफेक्ट है। उनसे हमारी उत्पत्ति हुई, यानी उसके अंदर जो परमात्मा के अंदर जो आत्मा का जो अंश था वही अंश हमारे अंदर है। वही अंश जिसको हम आत्मा कहते हैं या सोल कहते हैं, जो इस शरीर रूपी जीव के अंदर धारण करके बैठा हुआ है। और ये जीव का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता है, जितने भी जीव जंतु हैं, अर्थात हमारे शास्त्रों के अंदर 84 लाख योनि कही गई है, यानी बैक्टीरिया वायरस से लेकर के ह्यूमन बीइंग के बीच में 84 लाख प्रकार के अलग अलग जीव हैं। इन सभी जीवों के अंदर जो आत्मा स्वरूप तत्व है वो भगवान का ही है, ये उसका मतलब होता है। और जब इस भगवान
कंप्लीट है, परफेक्ट है, और जब हम उस यहाँ पर जब आते हैं तो हम लोग भी यहाँ पर परफेक्ट है, हम लोग भी इम्परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं के स्वरूप में से यहाँ पर आते हैं। और जब हम वहां से यहाँ पर आते हैं तो वहां जो कंप्लीटनेस था उसमें कोई भी खामी नहीं होती है, वहां पर कोई भी कम नहीं होता, वो फिर भी कंप्लीट रहता है, और उस कंप्लीट में से निकलने हुए हम लोग भी कंप्लीट है। ये आदि शंकराचार्य जी की बेसिक फिलोसॉफी है, जहां पर जब उनको कहा जाता है कि कौन है आप कहां से आए हैं, तब आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मैं वही हूं जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, मैं वही हूं जो इस सृष्टि का निर्माण करता है, अर्थात मैं वही ब्रह्म हूं जिस ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की है। और यहां से वो अपनी फिलोसॉफी की को आगे बढ़ाते हैं। सो ये उन्होंने भूमिका बांधी है कि हमारे अंदर जो आत्मा तत्व होता है, उस आत्मा तत्व की ओरिजिन कहां पर है, और ये जो सोल है वो वहां से यहां पर आ जाता है, और यहां पर वो सारे काम अपने धर्म के हिसाब से, मैं आगे वो क्या डिफाइन करें मैं पूरा आगे बताऊंगा। सो उसके बाद उन्होंने पूरे शरीर रचना को, और यहां से मैं पर्टिकुलर फिजिकल बॉडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, क्योंकि पहले जो दो स्ट्रांजा है उसके अंदर आदि शंकराचार्य हमारे जीवन से जुड़े हुए उन सारे एस्पेक्ट की बात करते हैं जो हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, हर इंसान के साथ उन चीजों से जुड़ाव है। बुद्ध्यहङ्कारचित्तानिधाः न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। हाँ, सो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारे सबके अंदर चार तरह के अंतर्मोड होते हैं, या यो आप ये कह सकते हो कि ऐसे चार कंट्रोल होते हैं जो हमारे पूरे अस्तित्व को कंट्रोल करते हैं। पहला होता है मन, दूसरी बुद्धि, तीसरा चित्त, और चौथा अहंकार। अब ये चारों की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बुद्धि जो है वो हमारे इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती है, और माइंड जो है, मन जो है, वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और हमेशा इन दोनों के बीच में एक कंफ्लिक्ट होती रहती है। जो सही है, जो अच्छा है, उसकी तरह स्वाभाविक रूप से इंटेलेक्चुअल या बुद्धि जो है वो सहज रूप से चली जाती है, लेकिन मन जो है उसे हमेशा जो चीज अच्छी नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है, वही करने की इच्छा होती है, उसे मन कहा जाता है। यही से पूरे विश्व के अंदर जो वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी शुरू होती है, वो हमारे अस्तित्व में भी यही से शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंफ्लिक्ट बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। यानी कि जो हमारी सत्व गुण जो होते हैं, जो बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, और तामसिक गुण जो मन को रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के बीच की जो कंफ्लिक्ट जहां से शुरू होती है, उसी कंफ्लिक्ट को हम लोग ज्यादातर हमारे जीवन के अंदर जीवन पर्यंत इसका अनुभव करते रहते हैं। लेकिन अगर बहुत सिंपल भाषा में समझाएं तो जितने भी एटम होते हैं, अणु कह सकते हो, या आप इसको सेल कह सकते हो, हमारा जो शरीर है वो अल्टीमेटली सेल का बना हुआ है, और हर सेल के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, यानी कि अगर आप सोच समझ करके आपको सब चीजों का ज्ञान होते हुए आप अपने आप को कंडक्ट करते हो, तो आपका चित्त
अर्थात आपका स्टेट ऑफ कामनेस काफी अच्छा होता है, और उस स्टेट में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सब आप बहुत स्वाभाविक रूप से देख पाते हैं। इसको देखने के लिए हमें जो हेल्प करता है वो हमारी बुद्धि होती है, जो अच्छा पार्ट है, और दूसरा ठीक उसका अपोजिट होता है, वो मन होता है, जो माइंड जिसको कहते हैं। इसी मन के अंदर हमारी जो आत्मा है या जीव है, वो इसी माइंड के अंदर रहता है, और यही से हमारे अंदर एक ईगो, एक अस्तित्व, एक हमारा अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये जो भाव आता है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, ये ईगो से आता है। अर्थात ये हमारा एक इग्नोरेंस है कि अल्टीमेटली हम सभी भगवान के ही पुत्र हैं, हम सब के अंदर उसी आत्मा का तत्व है, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं और हमारी विश की वजह से हम कहीं ना कहीं माइंड और ईगो के इन्फ्लुएंस में तेरा मेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, और ये जो कन्फ्लिक्ट का जो वर्ड है वो यहाँ से शुरू होता है। तो आदि शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, और ना ही मैं चित्त हूं, ना ही मैं अहंकार हूं, इन चारों से मैं परे हूं। फिर वो कहते हैं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, अर्थात जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, जिससे हम सुन सकते हैं ईयर्स, जिससे हम बोलते हैं या जिससे हम टेस्ट करते हैं वो है टंग, जिससे हम स्मेल लेते हैं जो है नोज, और जिससे हम देखते हैं जो है हमारी आईज। यानी अगर हम ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: स्मेल, टेस्ट, साइट, टच एंड हियरिंग। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आदि शंकराचार्य जी ने टच की बात नहीं की है, क्योंकि आप जब मेडिटेट करते हो, जब आप अपने आप को इस संसार से विलुप्त कर लेते हो, तब भगवान का स्पर्श भी आपको इसी शरीर के अंदर अलग स्वरूप में होता है। इसलिए उन्होंने टच की बात उस नहीं की है कि मैं वो नहीं हूं, क्योंकि टच भी कहीं ना कहीं आत्मा के साथ संलग्न होता है। सो इसी प्रकार ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूं, और ये पांचों की 5 ज्ञानेंद्रियां जो है वो माइंड के अधीन है, अर्थात मन के अधीन होती है। इस प्रकार वो हमारे अंदर काम करती है। सो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी शरीर के अंदर के ज्ञानेंद्रियों को डिफाइन करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, अर्थात यहाँ पे वो पंच महाभूत की बात करते हैं। यहाँ पे जल की बात नहीं कर रहे, वो बताऊंगा क्यों नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं न मैं आकाश हूं, न मैं वायु हूं, न मैं अग्नि हूं, न मैं पृथ्वी तत्व हूं। जैसे हम लोग हमेशा पंच महाभूत की जब बात करते हैं तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, लास्ट टाइम पृथ्वी, ये पांचों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे होती है कि जब कुछ भी नहीं था तब वैक्यूम था, अर्थात आकाश था, फिर उसी आकाश में धीरे धीरे गैसेस आए, अर्थात वायु की उत्पत्ति हुई, उसी के वायु के इंटरेक्शन की वजह से अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शंस हुए, और उसी में से एसिड्स और वाटर बने, और जब ये एसिड और वाटर कॉन्सेंट्रेट हुए, जब वो एक जगह पे सॉलिडिफाई होना शुरू हुए, वहीं से हमारे पूरे ग्रह या प्लैनेट्स, सन, इन सब की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है। इसी वजह से आज भी अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के ऊपर 75% वाटर है, सिर्फ 25% में ही सॉलिड है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आदि शंकराचार्य जी कहते हैं न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिव। यहाँ पानी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, इन सभी के अंदर बॉडी कंपोजिशन में 75% वाटर है। ये वो एरिया है जहां तक आज तक मॉडर्न मेडिसिन ने उतना रिसर्च नहीं किया है, जहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे वैदिक शास्त्र ने बहुत कुछ किया हुआ है कि क्यों पानी हमारे लिए जीवन दायिनी कहा गया है। इसीलिए हम नदियों की पूजा करते हैं, हम समुद्र की पूजा करते हैं, हम वरुण देवता की पूजा करते हैं। इन सभी के पीछे हमारे शास्त्रों में या हमारे ऋषि मुनियों के पास एक बहुत बड़ा ज्ञान रहा था, और उसी वजह से उन्होंने ये सब कहा। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें संस्कृत में लिखी है, और हम लोग सिर्फ इंग्लिश के अलावा कुछ पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। और अंत में वो कहते हैं कि न मैं अंतर मौन हूं, अर्थात न मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों ही नहीं हूं, ना मैं ज्ञानेन्द्रिया हूं, ना ही मैं पंच महाभूत हूं,
तो अल्टीमेटली मैं क्या हूं? तो आखिर में वो कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। ये चिदानंद स्वरूप क्या है इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन अगर अब कहूं कि आदि शंकराचार्य जी खुद मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आदि शंकराचार्य जी आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं थे, वो आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जितनी डिटेल में चर्चा की है उतनी शायद ही किसी ने की है। इसके बारे में मैं इस वीडियो को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं बताता हूँ कि वीडियो में क्या कहना चाहते हैं आदि शंकराचार्य जी। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशाः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। हेलो। Yes, sir. Go ahead. हाँ जी, मेरी स्क्रीन रही आपको? Yes, yes, ओके। yes. सो यहां पर आदि शंकराचार्य ने बहुत डिटेल में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात की है। जैसे अगर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और इस बार भी कि हमारे पंचकोश, हमारा जो अस्तित्व है वो पंचकोश के हिसाब से कहा गया है, और इसी पंचकोश को हमेशा नरिश करने के लिए हमारे शरीर में पंच प्राण का आवागमन होता रहता है। ये जो पंच प्राण है, ये पंच प्राण, एक प्राण फिजिकल बॉडी के लिए होता है, दूसरा प्राण एनर्जी बॉडी के लिए होता है, तीसरा प्राण इमोशनल बॉडी या जिसको हम मनोमय कहते हैं, चौथा प्राण इंटेलेक्चुअल बॉडी अर्थात ज्ञानमय कोश के लिए होता है, और पांचवा प्राण स्पिरिचुअल बॉडी या जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं उसके लिए होता है। सो ये जो पंच प्राण है, इस पंच प्राण का हमारे शरीर में आवागमन होता ही रहता है, और इस पंच प्राण के बारे में मॉडर्न मेडिसिन को कुछ भी नहीं पता, या वेस्टर्न मेडिसिन इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की। फिजिकल बॉडी तक का, यानी जो फिजिकल प्राण है उसके अंदर उन्होंने डेफिनेटली रिसर्च किया है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और लिपिड्स, ये जो उन्होंने डिवाइस किया है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी तक के हैं। इसके अलावा और भी 4 अलग अलग तरह के प्राण हमारे शरीर में आते रहते हैं, उस बारे में उन्होंने ज्यादा रिसर्च नहीं की है। उसके बारे में बात करूंगा इसके आगे हम लोग की। आदि शंकराचार्य जी ने हर एक चीज को काफी डिटेल में उसको बताया हुआ है। इसी वजह से अगर आपने देखा होगा तो हम लोग जब भी कभी किसी भगवान का आवाहन करते हैं, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो अगर आप जब भी सुनेंगे तो ब्राह्मण जो है वो हमेशा 5 टाइप के भोग लगाते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। अगर आपने सुना होगा तो हमेशा 5 कोर खिलाते हैं, फिर बीच में पानी देते हैं और फिर एक बार फिर 5 कोर दिए जाते हैं। ये सभी पूजा प्रवृत्ति में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर से आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमेशा 5 कोर ही भगवान को खिलाए जाते हैं। वो 5 कोर क्यों खिलाए जाते हैं या 5 दिवाले क्यों खिलाए जाते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके अंदर हम बात करेंगे। तो ये जो 5 दिवाले हैं वो पंच वायु के लिए है, अर्थात जो प्राण है वो हमारे शरीर में जब आ जाता है तो उसका हमारे शरीर में कैसे प्रवाह होता है या हमारे शरीर में कैसे उसका सर्कुलेशन होता है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इसको हम लोग पंचवायु कहते हैं। सो पंचवायु को अगर हम कहें तो सबसे पहला होता है प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब होता है कोई भी चीज ग्रहण करना,
स्लाइड चेंज जैसे कीजिए कि सर, अगर स्लाइड चेंज कीजिए, स्लाइड चेंज कीजिए। ओके, या प्लीज गो हेड। नहीं नहीं, इसके हाँ पहले का। अभी आ रहा या है। यस, प्राण वायु, सो जब हम पंच प्राणवायु की बात करते हैं, हाँ पंचवायु की जब बात करते हैं, तो ये जो प्राणवायु है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना। जैसे कि अगर आप खाना खाने बैठे हैं और आप जब भोजन का निवाला अपने मुंह में रखते हैं, उसको प्राणवायु कहा जाता है। जब आप सांस लेते हैं और सांस लेकर लेते हुए आप जो हवा को अंदर लेते हैं, वो भी प्राणवायु। आप जब पानी पीते हैं, वो पानी पीते वक्त आप जो ग्लास अपने मुंह से लगाकर जो पानी को अपने गले से नीचे उतारते हैं, वो भी प्राणवायु। अर्थात कोई भी चीज जब आपके शरीर के बाहर से आपके शरीर में जब प्रवेश करती है, तो उसका जो फर्स्ट एंट्रेंस पॉइंट है उसको प्राण कहा जाता है। फिर दूसरा आता है व्यान। व्यान का मतलब होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना। यानी आपने जब नाक से सांस ली, तो वो हवा आपके नाक से होते हुए लंग्स तक पहुंचती है, वो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। ठीक वैसे ही आप जब पानी पीते हैं, तो पानी आप मुंह से पीते हो, लेकिन वो फाइनली जाता स्टमक में है। उसके बाद वो कहाँ जाता है वो आगे डिफाइन किया गया है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो व्यान वायु करता है। ठीक उसी प्रकार हम जब खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये सारी की सारी प्रोसेस जिस प्रकृति के या जिस प्रोसेस के अंडर में होती है, उसको व्यान वायु कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे ब्रेन से बॉडी के लिए जो मैसेज जाते हैं और जो बॉडी से ब्रेन तक जो मैसेज आते हैं, उसको भी व्यान वायु कहा गया है। जो हमारा ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है और जो बॉडी से हार्ट की तरफ आता है, इस सर्कुलेशन को भी व्यान वायु कहा गया है। यानी कि मॉडर्न मेडिसिन ने उसको सिर्फ फिजिकल लेवल पे कहा है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने वाला जो बेसिक एलिमेंट होता है, वो ये पंचवायु के अंदर का व्यान वायु। अब तीसरा है समान वायु। समान वायु का अर्थ मतलब ये होता है कि जैसे आपने हवा ली, वो हवा लंग्स तक गई, तो हवा जब अंदर जाती है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हमें एब्जॉर्ब कर लेना है। ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, उसको समान वायु कहा जाता है। हमने जो खाना खाया, आपने रोटी खाया या सब्जी खाई, दाल खाई, चावल खाया, घी खाया, जो कुछ भी आपने खाया, जब आपके स्टमक में जाता है, वो स्टमक में पूरा चर्न होने के बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, लिपिड्स, फैट जो है यानी घी है, स्वीट है, ऐसी चीजों को लिपिड में कन्वर्ट किया जाता है, मिनरल्स है, विटामिन है। तो ये सब चीजों को जो एब्जॉर्ब करने का जो काम है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जब इसको एब्जॉर्ब करती है, तो उसे समान वायु कहा गया है। ठीक उसी प्रकार जब हम पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद वो जिस किसी सेल में जहां भी पानी की थोड़ी कमी की है, वहां पे जब उसको सर्कुलेट ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहां पर उसे नरिश किया जाता है, वो समान वायु के अंदर में आता है। अर्थात किसी भी चीज को ग्रहण करना, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना, किसी भी चीज को एसिमुलेट करना, उसका जो संस्कृत में एक सिंगल शब्द है, वो है समान वायु। चौथा आता है उदान, उदान वायु। उदान वायु का मतलब ये होता है सेटलमेंट। यानी कि आपने खाना खाया, तो खाने का पर्पस क्या है, तो आपने जब खाना खाया, उस खाने में से जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, लिपिड्स है, ये जो कुछ भी बने, इन सबको शरीर को चलाने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर करते हैं, या जितना भी प्रोटीन्स है, उस प्रोटीन्स को भी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके शरीर के अलग अलग भागों में उसे स्टोर किया जाता है, और जो प्रोटीन बहुत वेस्ट बन जाता है, उसी में से फिर बाल और हेयर, इन दोनों की उत्पत्ति होती है। हमारे शरीर के अंदर ये सारा मैकेनिज्म बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है कि आपको कैसे अंदर लेना है, उसे कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, और उसका फाइनल एंड प्रोडक्ट क्या है। अगर मैं उदान वायु की बात करूं, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, तो हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर आया, लंग से ऑक्सीजन ले लिया, फिर वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के पूरे शरीर में घूमता रहेगा, और जहां जिस किसी सेल को उस ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उस सेल को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा।
यानी वहां पे जब वो सेल उस ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, वो प्रोसेस को आप उदान वायु कह सकते हो, बिकॉज दैट इज अ एंड प्रोसेस जिसके लिए हम सांस लेते हैं। और लास्ट होता है अपान वायु, अर्थात आपने जो ग्रहण किया, सारी की सारी चीजें अच्छी हो जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के अंदर हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी की जितनी भी चीजें हैं उन सबको बाहर फेंक देते हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम कहें तो मॉडल साइज के हिसाब से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा बाहर फेंकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमने जो कुछ भी खाना खाया, रोटी सब्जी दाल चावल पचड़ी पापड़ जो भी हमने खाया है, जितना एब्जॉर्ब हो गया वो अपने शरीर ने समान वायु और उदान वायु में कन्वर्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। अब जो बाकी का बचा हुआ वेस्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा गया है, उस लार्ज इंटेस्टाइन में उसे सिग्मोइड कॉलन के अंदर स्टोर किया जाएगा। और जब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम शौच क्रिया के लिए जाते हैं तब इसी वेस्ट को शरीर के बाहर फेंक दिया जाएगा, उसे हम अपान वायु कहते हैं। सो अपान वायु हमारे शरीर में 3 प्रकार से होते हैं। एक शौच क्रिया से जो फिजिकल मैटर है या जो सॉलिड मैटर है वो उससे बाहर जाता है। जो लिक्विड है, आपने दिन भर में पानी पिया तो उस पानी के द्वारा जितनी भी लिक्विड टॉक्सिसिटी खड़ी हुई, उस लिक्विड टॉक्सिसिटी को भी बाहर भेजने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए यूरिनेशन होता है। और हम पूरे दिन भर में जो सांस लेते हैं और उसके अंदर हवा के साथ साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स ऐसा कुछ भी साथ में आ जाता है, उस वजह से हमारे लंग्स के अंदर जो टॉक्सिसिटी खड़ी होती है उसको बाहर फेंकने के लिए हमारे बॉडी से कफ या फ्लेम या स्पुटम इस तरीके से बाहर आता है। ये तीनों ही स्वरूप अल्टीमेटली अपान वायु के स्वरूप है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपको लूज मोशन होते हैं या कभी आपको वॉमिटिंग होता है, अगर आपको 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर होता है, कफ एंड कोल्ड भी हुआ है, तो 48 आवर्स तक आपको इसकी दवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका शरीर आपके अंदर बने हुए उस कचरे को बाहर फेंक रहा है। तो उस कचरे के बाहर फेंकने के प्रोसेस है, उसे रोकने की जरूरत नहीं है। सो इस प्रकार ये जो पंचवायु है, ये पंचवायु एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो मॉडर्न मेडिसिन सिखाती है, अगर आप इस सिर्फ 5 शब्दों को डिटेल में अध्ययन करें तो मेरे हिसाब से मॉडर्न मेडिसिन के पास ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आज भी मतलब मॉडर्न मेडिसिन के पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आयुर्वेद के पास है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि मॉडर्न मेडिसिन के पास क्या इंफॉर्मेशन नहीं है। Go ahead, sir. Next slide, sir. हाँ, इसके बाद वो कहते हैं आदर्श शंकराचार्य जी, नच प्राण संगो नवै पंचवायु नवा सप्त धातु। अब ये सप्त धातु क्या है? सिर्फ एक शब्द है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो कम से कम 2 मॉडर्न मेडिसिन की जो पूरी बुक्स है, यानी उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इस एक सप्त धातु के एक शब्द के अंदर आ जाता है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट इज। सो हम लोग ये मानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में से सिर्फ हमारा रक्त बनता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं ये 7 स्वरूपों में बदलता है। यानी कि आज आपने जो खाना खाया वो नेक्स्ट 40 डेज तक अलग अलग रूप में आपके शरीर में ट्रैवल करता रहेगा। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो, पर्टिकुलरली कभी आयुर्वेद डॉक्टर के पास या मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के पास, तो पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर किसी लड़की को वाइट डिस्चार्ज होता है या ल्यूकोरिया हो जाता है, या अगर किसी मेल को स्वप्नदोष होता है या अर्ली डिस्चार्ज होता है, तो उसके लिए कहा जाता था कि आपके धातु के अंदर धातु का लॉस हो रहा है, अर्थात आपके शरीर में से धातु का लॉस हो रहा है, उस वजह से आपको कुछ कुछ बीमारियां आ रही हैं। आई होप आप सब लोगों ने ये सुना होगा कि धातु का लॉस होता है। ये जो धातु है ये इसी सप्त धातु में से एक धातु है। सो नाउ लेट मी स्टार्ट कि जैसे हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब वो स्टमक में जाता है, 1.5 आवर के बाद जब स्टमक में पूरा चर्निंग होता है, उस चर्निंग के बाद जब वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे मैंने कहा था कि समान वायु उसे एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, अर्थात वहां पर ये सब कुछ एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ रस। तो सबसे पहला हमारा फूड का जो स्वरूप होता है वो होता है रस।
2 दिन तक यानी 48 आवर्स तक हमारे फूड पार्टिकल्स जो है वो शरीर में घूमते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रस। जैसे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। ये सारे प्रोसेस होने में 48 आवर्स का टाइम लगता है और उसके बाद उसी ग्लूकोज में से जो ब्लड बनाने का प्रोसेस है या ब्लड बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो रॉ मटेरियल इन्हीं लोगों से प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद वो रस बनता है रक्त में, रक्त के बाद बनता है मांस, मांस अर्थात मसल्स, उसके बाद बनता है मेद, मेद अर्थात फैट, उसके बाद बनती है अस्थि अर्थात बोन्स, अस्थि के बाद बनता है मज्जा जिसको बोलते हैं बोन मेरो, और बोन मेरो के बाद बनता है शुक्र या अन्न जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन में गुनाड्स भी कहते हैं। अर्थात हम जो भी खाना खाते हैं उस खाना की 40 डेज की पूरी प्रोसेस है। यानी आज जो आपने खाना खाया है इस खाने की वजह से आपको ऊर्जा नेक्स्ट 40 डेज तक मिलती रहेगी। इसी वजह से यही वो वजह है जिस जगह पे मॉडर्न मेडिसिन को ये नहीं पता है कि फैट हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है। अगर आपके शरीर में फैट इनफ नहीं होगा तो आपके बोन स्ट्रांग नहीं होंगे, अगर बोन स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपका बोन मेरो अच्छा नहीं बनेगा, फिर आप बोलोगे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है। लेकिन उन सबके लिए जो जरूरी है वो घी है। आयुर्वेद के अंदर 50 औषधियां 50% औषधियां ऐसी हैं जो सिर्फ घी से दी जाती है। यानी जो पंचकर्मा है उसके अंदर घी को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है क्योंकि वही सबसे बड़ा मॉड्यूलेटर है। पहली तीन चीज जो है रस, रक्त और मांस, ये तीन चीजें सिर्फ आपके डे टू डे यूज के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखने जाए तो वेद अर्थात फैट ये सबसे बेसिक एलिमेंट होता है। उसी के बाद आपकी हड्डियां मजबूत होगी, अगर हड्डी मजबूत हुई तो आपके बोन मेरो अच्छे होंगे, अगर आपका बोन मेरो अच्छा हुआ तो ही आपके शुक्राणु या अंडाणु बनेंगे। अगर आप देखोगे तो पिछले 20-25 सालों के अंदर फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी सेंटर बहुत ज्यादा खुल गए हैं। करेक्ट? यस। क्यों इतने ज्यादा खुल गए हैं? आज से 40 साल पहले, आज से 50 साल पहले, यानी हमारे दादा दादी के जमाने की अगर हम बात करें, यानी आज से 60 साल पहले एक एक पेरेंट्स को या एक एक कपल को 6 से 8 बच्चे होते थे। राइट। ठीक है। पिछले 40 साल में ऐसा क्या हो गया कि एक कपल को एक बच्चा पैदा करने के लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। राइट। ये वही गलती है जो 1980s के आसपास हमारे सिस्टम में आ गई थी कि आप घी खाना बंद कर दो, आप घी में खाओगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। अब तो खैर साइंटिफिकली ये भी प्रूव हो गया कि गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी कोई चीज नहीं होती। लेकिन ये जो 1980s के बाद जो आया, घी खाना बंद किया, उसके बाद ही ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आई। उसके पहले कभी भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं थी। राइट। अगर आप हेल्थ साइंस को बहुत अच्छे से देखेंगे तो यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। सो ये जो सप्त धातु का जो कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेद को हम लोगों ने 70s के बाद सिस्टमैटिकली यूज करना बंद कर दिया। अप टू 1975 इंडिया के अंदर आयुर्वेद वाज अ मेन स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन एंड मॉडर्न मेडिसिन वाज अ सेकेंडरी स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन। इसलिए हेल्थ केयर के जितने भी प्रश्न 1975 के पहले थे उससे 2 गुने या 3 गुने ज्यादा प्रॉब्लम 75 के बाद आए। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आयुर्वेद से अलग होते गए, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न मेडिसिन की तरफ ज्यादा बढ़ते गए, उसके साथ साथ हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हेल्थ और हेल्थीनेस के, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ और उसी कॉम्प्रोमाइज की प्राइस आज की जनरेशन या शायद आने वाली जनरेशन भी पे करेगी। लेकिन ये सप्त धातु जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और सोचिए कि आदि शंकराचार्य जी ने इसके बारे में 9th सेंचुरी में लिखा हुआ है। आज हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं। राइट। और आदि शंकराचार्य जी ने खुद ने अपने हिसाब से ये नहीं लिखा, ये सारा वेदों के अंदर और हमारे आयुर्वेद के अंदर 5000 साल पहले से लिखा हुआ है। राइट। इस वजह से हमें लगता है कि हम लोगों को हमारे जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हमारे कल्चर की तरफ जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट। अब इसके बाद वो कहते हैं नच प्राण संगो नवै पंचवायु नवा सप्त धातु नवा पंचकोश। अब पंचकोश के ऊपर लास्ट टाइम मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, बट बहुत ब्रीफली अगर कहूं तो अन्नमयी कोश अर्थात फिजिकल बॉडी होती है, प्राणमयी कोश अर्थात एनर्जी लेवल बॉडी होती है, मनोमयी कोश अर्थात हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं, हमारे अंदर जो इमोशंस पैदा होते हैं, इसके ऊपर एक पूरा स्टांजा है आदि शंकराचार्य जी का, वो मैं बताऊंगा।
और फिर ज्ञानमयी कोश होता है, जिसकी वजह से हमारी इंटेलेक्चुअल बॉडी हमारी पैदा होती है, और फाइनली आनंदमयी कोश। सो इसे मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ये सब चीजें बोल चुका हूँ कि अन्नमयी कोश जो है ग्रॉस मैटर है, प्राणमयी कोश है वो वेजिटेबल वर्ल्ड है, मनोमयी कोश है, वहां से एनिमल किंगडम की शुरुआत होती है, बुद्धि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग या इंटेलेक्चुअल लोगों की शुरुआत होती है, और आनंदमयी कोश अर्थात देवता कहे, साधु पुरुष कहे, सत्पुरुष कहे, या जो लोग देश की, समाज की उत्थान की जो हमेशा केयर करते रहते हैं, उसके लिए अगर उन्हें अपना बलिदान भी देना पड़े तो उन्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जो मैंने शुरुआत में कहा था, आहार निद्रा भयमय तुरंज सामान्य एतत् पशुभि शमाना कर्मो हित धर्मो हितेशाम को अधिक मार्गे कर्मानुगोगच्छति जीवय का, वो इन्हीं आनंदमय कोश वाले लोगों के लिए कहा गया है। उसके बाद आता है कर्मेंद्रिया दिख रही है अभी, नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है? नहीं, आप नेक्स्ट स्लाइड क्लिक कीजिए। हाँ, अब आया कर्मेंद्रियास। ओके, हाँ। या सो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, नच प्राण संगो नवै पंचवायु नवा सप्त धातु नवा पंचकोश नवापाणि पादौ नचोपस्थ पायु, अर्थात यहाँ पर वो 5 कर्मेंद्रियों की बात करते हैं। पहले स्टांजा में उन्होंने 5 ज्ञानेंद्रियों की बात की थी, 5 सेंसेस की बात की थी, लेकिन यहाँ पर 5 कर्मेंद्रियों की बात है। अब ये 5 कर्मेंद्रिया क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। सो ये जो कर्मेंद्रिया है, ये है सबसे पहला होता है एक्सक्रीशन का, यानी कि जो गुदा है हमारा। उसके बाद होता है मोशन, पैर, हमारे पैरों से हम चलते हैं, हमारे हाथ से हम मैनुअल स्किल करते हैं। स्पीच है, वाणी है, वो भी हमारे कर्म है। इसी वाणी से हम किसी को बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, और इसी वाणी से हम किसी को घाव भी दे सकते हैं, किसी को तकलीफ भी दे सकते हैं। सो वाणी से भी हम कर्म पैदा करते हैं। सो हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ, अर्थात जो हम यूरिनेशन करते हैं वो भी एक तरह का हमारा कार्य है, और जो रीजनरेशन करते हैं, यानी हमारे बाद हम नेक्स्ट जनरेशन को इस समाज में छोड़कर जाते हैं, ये भी हमारा कर्म है। क्योंकि अगर हर कोई आदमी अपने बाद नेक्स्ट जनरेशन को पैदा ही नहीं करेगा तो ये समाज की व्यवस्था चलेगी कैसे? सो रिप्रोडक्शन भी समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए उतना ही जरूरी है। इसी वजह से इसको 5 बेसिक कर्म कहा गया है, और ये कर्म को करने के लिए हमें जो दी गई है वो 5 कर्मेंद्रिया है। और इसके बाद फिर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अल्टीमेटली मैं ये कुछ भी नहीं हूं, न मैं पंच प्राण हूं, न मैं पंच वायु हूं, न मैं सप्त धातु हूं, न मैं पंचकोश हूं, ना ही मैं 5 कर्मेंद्रिया हूं। तो अल्टीमेटली मैं क्या हूं? सो चिदानंद रूप शिवोहम शिव। इसके आगे वो कहते हैं, जैसे मैंने कहा था कि जो मन की बात है, जो मन को जो डिफाइन करते हैं वो यहां पर आएगा कि मन क्या कार्य करता है, मन के अंदर क्या क्या चीजें पैदा होती है, वो आदि शंकराचार्य जी यहां पे डिफाइन करते हैं। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। एक्चुअली मैंने गूगल से मतलब उसको किया है ना, तो वो हाइपरलिंक होने में थोड़ा सा उसको जाना पड़ रहा है नीचे। रागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्।
हाँ जी। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारा जो मन है, हेलो, Sir, go ahead, sir. I'm listening. Go ahead. हाँ मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हमारे माइंड के अंदर 6 बेसिक ऐसे दुर्गुण हैं जिसकी वजह से इंसान का पतन होना बहुत स्वाभाविक है, या ये कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है हमारे अंदर बहुत सहज हो जाती है। जैसे सबसे पहला होता है द्वेष, एनिमिटी। किसी का भी थोड़ा सा अच्छा हुआ, थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, मोदी जी बहुत अच्छे से बीजेपी को रूल कर रहे हैं, पूरे देश में शासन कर रहे हैं, तो मोदी जी ये नहीं कर रहे, मोदी जी वो नहीं कर रहे। उनके सामने हम क्या कर रहे हैं ये ज्यादातर नहीं देखा जाता। लेकिन मोदी जी अगर जैसे ममता बनर्जी या केसीआर या अरविंद केजरीवाल जी, ये सब लोग सोचते हैं भाई वो भी चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, मैं भी चीफ मिनिस्टर, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बने। ये जो द्वेष है, ये द्वेष यहां से उत्पन्न होता है, उसका कारण होता है मन। फिर दूसरा होता है राग। सो राग वो जो होता है वो होता है प्रेम। मतलब उन्हें पॉलिटिक्स और पावर से इतना ज्यादा प्रेम है कि उसकी वजह से क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब भी वो नहीं सोच पाते। तीसरा होता है ग्रीड, यानी लोभ। ये वो है कि मेरे पास जो पावर है वो तो है, उसका मुझे क्या करना है, उससे मुझे लोगों की कैसे अच्छी सेवा करनी है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं सोचना है। लेकिन क्या मेरे पास नहीं है, जैसे अक्सर ये कहा जाता है ना $99 क्लब, कि मेरे पास $99 है लेकिन $100 नहीं है। $100 हो गए अब $1000 नहीं है, $1000 हो गए $10,000 नहीं है, $10,000 हो गए 1 लाख नहीं है। सो उस प्रकार से हमारे अंदर ये लोभ जो है वो बढ़ते ही रहता है। अगेन इस लोभ की उत्पत्ति हमारे माइंड से होती है। उसके बाद होता है मोह, यार ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी है, ये चीज मेरी है। यानी हर चीज के साथ जो आपका आपका जो पोजीशन है, उस पोजीशन के साथ आपका जो अफेक्शन क्रिएट हो जाता है, उसी के अंदर से मोह पैदा होता है। और यही मोह फिर अगेन कुछ गलत चीजों की जड़ बन जाता है। उसके बाद होता है मद, यानी कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। जैसे अगर हम लोगों ने देखा था कि महाराष्ट्र के अंदर जब महाविकास आघाड़ी जब चल रही थी, तो संजय राउत जी आकर कैसा बोलते थे जैसे कि उनके अलावा दुनिया में दूसरा कोई लीडर है ही नहीं। वो रिपब्लिक के क्या नाम का अर्नब जी, शायद उनको अरेस्ट करवा दिया। तो उस वक्त वो एक मद में थे, भाई मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अलावा न मेरे आगे कोई पीछे, न मेरे पीछे कोई है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। आज वही इंसान उसी जेल की सलाखों के पीछे है। अगर उस वक्त उसके अंदर ये मद नहीं आया होता, अगर तब ये उनको ये सब नहीं हुआ होता, तो ये सब नहीं होता था। मद के दो स्वरूप होते हैं, एक मद अहंकार में कन्वर्ट होता है और दूसरा मद सेल्फ रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही ये मद अहंकार में कन्वर्ट होता है, वहां से वो आपका डिटोरेशन का काम शुरू करता है। अगेन इस मद की भी उत्पत्ति माइंड से ही होती है। और फाइनली होता है मत्सर, अर्थात जेलसी। सो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जितने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हैं जो एस्पायरेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए, ये सब एक जेलसी की वजह से, कि उन्हें ये जेलसी है कि मैं उस कुर्सी के ऊपर क्यों नहीं बैठा। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि अगर वो बहुत अच्छा काम करेंगे, आज नरेंद्र मोदी जी अगर गुजरात में अच्छा काम नहीं करते थे, तो क्यों पूरी देश की जनता उन्हें इलेक्ट करके देश का प्रधानमंत्री बनाती थी। सो उसी प्रकार से ये एक तरह का विकार है हमारे अंदर, कि हम अपने आप को उतना सक्षम बनाए, हम अपने आप को उतना एलिवेट करें, उसकी जगह पे हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने में इतना समय व्यर्थ कर देते हैं। इससे ना हमारा ग्रोथ हो पाता है, ना हमारा डेवलपमेंट हो पाता है, और उसके अलावा जो हमारे पास अच्छा समय भी होता है, उस समय को भी हम लोग व्यर्थ कर देते हैं। तो ये जो 6 अवगुण हैं, यानी हमारे शास्त्रों के अंदर इसे 6 अवगुण कहा गया है। अगर जिन 6 अवगुणों में से अगर एक भी अवगुण आपके शरीर में आ जाता है, तो आप कितने भी सुलझे हुए क्यों ना हो, आपका कितना भी हरा भरा परिवार क्यों ना हो, आप कितना भी सुखी परिवार क्यों ना हो, लेकिन उस परिवार को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसी चीज को समझाने के लिए आपके दर्शकों के लिए, अगर वो तेनाली रामा सीरियल देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसमें 500 के बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 503 504 के बाद विक्रमादित्य जी का जो एक सिंहासन था,
जिसके ऊपर कृष्णदेव राय जी एक बार बैठना चाहते थे। और उस वक्त ये जो 6 अवगुण जो है, इन 6 अवगुणों के ऊपर आपको कैसे विजय प्राप्त करनी चाहिए, उसके ऊपर वो पूरे एपिसोड बनाए। मुझे नहीं पता, शायद 12 या 15 एपिसोड होंगे, लेकिन ये इसी को दिखाते हैं कि राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब कैसे आपके शरीर में आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सो ये जो 6 अवगुण है, इन अवगुणों के बारे में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, न मे द्वेष रागौ न लोभ मोह मदो नहीं वमे नहीं व वात्सल्य भाव। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके बाद जो मन का जो नेक्स्ट एरिया होता है वो है न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। अर्थात हम जितने भी लोग हैं, जो भी अपना जीवन जी रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल रह दो, कोई भी ह्यूमन बींग रह दो, चाहे वो इंडिया में है, रशिया में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में, किसी भी कंट्री में है, वो 4 ही कर्म करता है। एक, उसका धर्म, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि धारयति इति धर्मम, अर्थात एक इंसान अपने जीवन काल में कम से कम एक साथ 30 से 40 कर्म करता रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ कहता हूँ, लास्ट टाइम भी कहा था कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो अपने माँ बाप के लिए बेटा है, अपने भाई बहन के लिए वो सिबलिंग है। जब वो स्कूल में जाता है तब वो स्टूडेंट बन जाता है, अध्ययन करता है। जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो अपनी वाइफ के लिए वो पति बन जाता है। अगर लड़की है तो वो अपने हस्बैंड के लिए वो वाइफ बन जाती है। जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसके लिए या तो वो पिता बन जाता है या तो वो माता बन जाते हैं। जब वो माता या पिता बनते हैं तो वो खुद माता और पिता, मतलब वो बेटे और बेटी खत्म नहीं हो जाते, वो भी किसी के बेटे बेटी तो है ही है। जब वो किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वो एम्प्लॉयर होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, मैनेजर होते हैं, पार्टनर होते हैं। सो इस प्रकार से हर एक आदमी हर समय पे अलग अलग धर्म निभाता ही रहता है। लेकिन ज्यादातर ये जो धर्म की जो परिभाषा पिछले 40-50 सालों में जो आई है, वो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड है। यानी अगर मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, मेरी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी कोई समाज के लिए जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी आरएसएस की है या बीजेपी की है या पॉलिटिशियंस की है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे मेरे परिवार को संभालना है। ये जो थॉट प्रोसेस जो पिछले 40-50 साल में आ गया है, ये हमारे समाज की अधोगति का एक बहुत बड़ा कारण है। कहीं पर भी कुछ भी गलत होता है तो ये मेरा धर्म है कि मैं उस चीज को ठीक करूं। अगर मैं ठीक नहीं कर सकता तो उसके लिए आवाज उठाऊं, जैसे आप अभी कर रहे हैं कि भाई कुछ चीजें हैं जो गलत हो रही है गवर्नमेंट लेवल पे, तो हमें डेफिनेटली उसकी आवाज उठानी चाहिए। ये हमारा धर्म भी है और ये समाज की व्यवस्था के लिए जरूरी भी है। सो अल्टीमेटली पहला हमारा पुरुषार्थ होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, यानी हम जो भी काम करते हैं उस काम से फाइनली हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति। क्योंकि हमारा घर, परिवार, समाज, इन सब के अंदर अर्थव्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। अब ये दोनों अगर सिर्फ नॉर्मल चलते रहेंगे तो हम ग्रोथ नहीं कर सकते। सो ग्रोथ करने के लिए हमें काम की भी आवश्यकता है। यानी कि आज मेरा छोटा ऑफिस है, कल बड़ा होना चाहिए। आज मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, कल मैं 10 लाख कमाना चाहिए। आज मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, मैं 1 करोड़ कमाना चाहिए। ये जो डिजायर है, ये जो विश है, ये विश ही एक ऐसा टूल होता है जो सतत इस दुनिया को परिवर्तित करने के लिए, इस दुनिया के अंदर परिवर्तन लाने के लिए इसको मोटिवेट करता रहता है। ये भी हमारे अंदर ही रखा हुआ एक पुरुषार्थ है। और आखिरी में होता है मोक्ष। सो कई लोग ऐसे काम करते हैं जिस काम के लिए उनका पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है, उसका ज्यादातर बेनिफिट दूसरों को ही मिलेगा, उनको पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो इसीलिए करते हैं ताकि वो लोगों के लिए अच्छा करके जाएंगे, लोग उन्हें दुआएं देंगे, लोग उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे, लोग उनके बारे में अच्छा बोलेंगे, और उसके द्वारा अल्टीमेटली वो लिबरेशन या इस अटैचमेंट या जिसको हम मोह, माया, मद, मत्सर, इसकी जो बातें कहते हैं, उन सबसे जब अलिप्त होकर जब आदमी काम करना शुरू कर देता है, उसी को हम लोग मोक्ष का मार्ग कहते हैं। इसीलिए साधु, सन्यासी, ऋषि मुनि, गुरु, इन सब की वैल्यू हमारे शास्त्रों में इसीलिए है क्योंकि हम सब समाज के साथ जुड़े हुए जीव हैं और समाज में जीते जीते हमें अपने आत्मा के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, आत्मा के बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, इसको गाइड करने के लिए जो लोग हैं, उन लोगों को हमने गुरु, साधु, सन्यासी या आनंदमय कोश कहा गया है। तो ये हमारी फिलोसॉफी है। राइट। एंड फाइनली अगेन आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ये इनमें से भी मैं कुछ भी नहीं हूं, न मैं राग हूं, न मैं द्वेष हूं,
लोभ नहीं है, मद नहीं है, मत्सर नहीं है, न मुझे कोई धर्म है। अर्थात आदि शंकराचार्य जी खुद कहते हैं कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई अर्थ नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है, और मुझे किसी मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं है। अर्थात मैं इन सबसे परे हूं, और ये सबसे परे का फॉर्म क्या है? तो मैं सच्चित आनंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। अब इसके आगे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार मन के कर्म है, उसी तरह से बुद्धि के भी कुछ कर्म होते हैं। तो बुद्धि के कर्म क्या है, उसके ऊपर फिर आदि शंकराचार्य जी डिफाइन करते हैं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। Yeah. सो यहां पर आदि शंकराचार्य जी कुछ और बताते हैं। मेरी स्क्रीन आ गई है? Yeah, it's there. सच्चिदानंद है, बाद में चेंज कीजिए पुण्यम। हाँ, पुण्य नेक्स्ट टू, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, या या सो न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। अर्थात यहां पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि हर कर्म, जैसे हम लोग कहते हैं धारयति इति धर्मम, सो धर्म करते करते हमसे कभी पाप भी होते हैं, हमसे पुण्य भी होते हैं, और हम जो कर्म करते हैं उससे हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। अर्थात हमारे जो भी कर्म होते हैं, जो कुछ भी आप कर्म करते हो, उस कर्म के साथ उसका फल निश्चित है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो उससे आपको सुख मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे, आप दूसरों को तकलीफ दोगे, दूसरों को मारोगे, दूसरों की हत्या करोगे, तो अल्टीमेटली उससे आपको पाप मिलेगा, और उस पाप का जो अंत है वो आपको दुख के हिसाब से ही आपको भोगना पड़ेगा। सो ये बहुत क्लियर हमारे उस पर डेफिनेशन है कि हर किसी कर्म का कोई ना कोई उसके साथ जुड़ा हुआ फल है, या तो पुण्य है या पाप, या सुख है या दुख। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि चार तरह के कर्म करना चाहती है। अर्थात वो कभी भी पाप करना नहीं चाहती, वो पुण्य करना चाहती है। तो आप पुण्य कैसे कर सकते हो? तो पुण्य करने के भी चार रास्ते बताए गए हमारे शास्त्रों के अंदर। पहला है मंत्र, यानी आप कुछ नहीं कर सकते हो, घर में बैठे बैठे मंत्र जाप करो, माला जी ले लो, और मंत्र जाप करते करते भी आप पुण्य कमा सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास कैपेसिटी है, पैसा है, तो आप पिलग्रिमेज पे जाइए, आप भगवान के दर्शन करिए, मंदिरों के दर्शन करिए, और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, साधु सन्यासी है, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे लोगों से मिलकर के उनके आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो अगर आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल रिसोर्स है तो आप तीर्थ धाम कर सकते हो। अगर लिखना आ जाता है तो आप अपना समय इन्वेस्ट करके आप वेदों को अध्ययन कर सकते हो, उपनिषद पढ़ सकते हो, पारायण कर सकते हो, रामायण महाभारत गीता जी, इन सब का आप अध्ययन कर सकते हो, और इस अध्ययन के द्वारा भी आप अपना पुण्य अर्जित कर सकते हो। क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी गलत करने की जो मानसिकता है वो अपने आप कम हो जाएगी। और आखिरी होता है यज्ञ। मान लीजिए आप बहुत सक्षम है, आपके पास बहुत कैपेसिटी है, और आप न सिर्फ अपने लिए लेकिन आप दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हो, तो ऐसे केस में आपको यज्ञ करने के लिए कहा गया। यज्ञ अर्थात सिर्फ हवन कुंड बनाकर सिर्फ हवन करना उतना ही नहीं होता है। यज्ञ अर्थात समाज के उन्नति के लिए, समाज के बेटरमेंट के लिए
पैसा खर्च करके सबका भला हो, सबका बेटरमेंट हो, यानी जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग को परिपूर्ण करने के लिए आप जो भी संकल्प लेते हो या जो भी आप कार्य करते हो, उसे यज्ञ कहा गया है। जैसे मान लीजिए आपने फ्री कैंप किया, आपने फ्री हेल्थ चेकअप किया, आपने फ्री ब्लड डोनेशन किया, आपने फ्री में खाना खिलाया, आपने फ्री में लंगर शुरू किया, आपने फ्री के अंदर कोई भी आपने एक व्यवस्था शुरू की, जिस व्यवस्था के अंदर लोग आकर के उनकी जो भी जरूरत है उसको पूरा कर सके, ये भी एक तरह का यज्ञ होता है। यानी आप हर किसी इंसान को उसके धर्म के प्रति जागरूक भी करते हो, आप अगर इसको भी अपना यज्ञ बना लेते हो तो ये भी आपका यज्ञ कहलाता है। सो इस प्रकार से हमारे 4 अलग अलग कर्म बताए गए हैं जो बुद्धि के कर्म हैं: मंत्र, तीर्थ, वेद और यज्ञ। इसके बाद का जो है वो बड़ा ही मार्मिक और बहुत ही मेरा बात बड़ा फेवरेट है। यहां पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अब सभी लोग, जो भी जीव जंतु है, वो सभी किसी न किसी के लिए खाना है और वो किसी और का भक्षण करते हैं। अर्थात मान लीजिए कि छोटा सा कीड़ा है तो लिजर्ड उसको खा जाएगी, लिजर्ड को कोई दूसरा खा जाएगा, उसको फिर कोई तीसरा खा जाएगा। तो जो पूरी एनिमल किंगडम है, ह्यूमन बीइंग को छोड़ दीजिए, तो जितने भी एनिमल किंगडम है वो दूसरे जानवर को मारकर ही खा सकते हैं। लेकिन इंसान अकेला ऐसा है जो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन अपनी मानसिकता की वजह से वो कभी कभी नॉन वेजिटेरियन फूड ले लेता है। वो मैं बताऊंगा कैसे है। लेकिन यहां पर आदि शंकराचार्य जी बताते हैं, अहम भो जन्म नहीं व भोज्यन न भोक्ता। अर्थात न मैं भोजन हूं, भोजन अर्थात जो भी सामग्री होती है, जो थाली के अंदर जो भी दाल सब्जी चावल जो भी लगाया जाता है वो सब भोजन कहा जाता है। जो प्रिपेयर करके आपके सामने लगाया है, आपको सिर्फ उठाकर आपके मुंह में रखना है। भोज्य वो होता है जो मैटर, जिसको आप खा सकते हो, जैसे वेजिटेबल हो गए, दाल हो गए, पल्सेस हो गए, वीट वीट हो गया, जितने भी खाने पीने की सामग्री है, ये सारी की सारी जो बैटर है उसको भोज्य कहा जाता है। उसी भोज्य में से भोजन बनता है और आखिर में जब वो हमारी थाली में बन करके आता है तो उसका जो उपभोग करता है, यानी हम जब उसको खाते हैं तो उसको भोक्ता कहा गया है। तो भोजन के 3 स्वरूप है। या तो आप भोजन के स्वरूप में किसी के सामने बैठे हो, या आप भोजन सामग्री के हिसाब से किसी के सामने बैठे हो, और फाइनली आप उसका भक्षण करते हो या आप उसको जब खाते हो तो आप उसमें भोक्ता बनते हो। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदायज्ञ, अहम भो जन्म नहीं व भोजन न भोक्ता। अर्थात मैं इन 3 में से कोई भी स्वरूप नहीं हूं। अल्टीमेटली मेरा स्वरूप कौन सा है? सो चिदानंद रूप शिवोहम शिव। इस अभी तक आदि शंकराचार्य ने जो जो कुछ भी कहा, वो ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइंड के क्या काम है, हमारे एक इंडिविजुअल के हिसाब से क्या काम है, बुद्धि के क्या काम है, यहां तक का दिया हुआ है। अब आदि शंकराचार्य जी बात करते हैं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया में आके हमारा व्यवहार कैसे होता है, या जिसको आदि शंकराचार्य जी संसार कहते हैं, तो वो संसार कैसे होता है और उस संसार में हम कैसे विचरण करते हैं, उसके ऊपर आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं। न मृत्युर्न शङ्का न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।
Yes, sir. I think we need to. या यस सो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि हम जिसकी बात करते हैं, नवे मृत्यु शंका नवे जाति विदस, इंसान का सबसे बड़ा फियर क्या होता है? वो होता है डेथ का। दूसरा, उसे फियर होता है जाति भेद का, अर्थात मैं मेरी कम्युनिटी से बाहर हो जाऊंगा, मैं आइसोलेट हो जाऊंगा, उसका एक डर रहता है। तीसरा, कि जब वो बाहर की दुनिया में जाता है और बाहर की दुनिया में जब उसे प्रॉब्लम्स आती है तो उसे सबसे पहले पिताजी याद आते हैं, और अगर उसे चोट लग जाती है, कहीं मार लग जाती है, तो उसके ऊपर घाव लगाने के लिए फिर उसको मदर की याद आती है। अर्थात हर इंसान के लिए उसका फादर एक प्रोटेक्शन लेयर होता है और मदर हमेशा केयर की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसीलिए कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि हमारे शास्त्रों के अंदर भगवान का जो दर्जा है वही दर्जा माता और पिता को भी दिया गया है, क्योंकि हर इंसान को अपने जीवन के अंदर आने वाली सभी असुविधाओं के सामने सबसे पहला प्रोटेक्शन, सबसे पहली सेफ्टी पॉइंट माता पिता से मिलती है। और आखिर में वो कहते हैं, न मेरे पास मृत्यु है और ना ही मेरा जन्म है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नहीं व मैं नहीं व माता न जन्म, मतलब मेरा जन्म भी नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं, यहां पर वो रिलेशनशिप्स की बात करते हैं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो बेसिक रिलेशनशिप माता पिता को छोड़ करके हमारी क्या रिलेशनशिप्स होती है? तो एक रिलेशनशिप होती है बंधु की, अर्थात रिलेटिव्स की। इसमें चाचा, मामा, मासी, बुआ, कजिन सब लोग आ गए। सो एक होता है बंधु अर्थात रिलेटिव्स, मित्र अर्थात फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आपके स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलोनी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी के अंदर कोई भी तरह के फ्रेंड्स होते हैं। तो हमारी रिलेशनशिप में या तो हमारे रिलेशन है या हमारे फ्रेंड्स हैं। तीसरा, या तो हमारे कोई गुरु होते हैं, अर्थात जो हमें सिखाते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। और चौथा, हमारे शिष्य होते हैं, यानी वो लोग जो हमसे कुछ सीखते हैं, जिसे गाइड करने का काम हमारा होता है। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, न मैं किसी का बंधु हूं, न मैं किसी का मित्र हूं, न मैं किसी का गुरु हूं, ना ही मैं किसी का शिष्य हूं। अल्टीमेटली मेरा जो स्वरूप है वो है चिदानंद रूप शिवोहम शिव। बस अब ये लास्ट स्टांजा है कि जो शिवोहम जो स्वरूप है, उस स्वरूप को किस तरह से आदि शंकराचार्य जी डिफाइन करते हैं। यानी जो आत्मा का स्वरूप है, जो हम कहते हैं हम सभी के अंदर एक आत्मा है, जीव है, या जीवित एक इंसान जिंदा है। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। सो Yes, sir. यहाँ पर, हाँ, सो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी अपने आप को डिफाइन करते हैं, या ये कहते हैं कि हम सभी जितने भी जीव हैं, हम सभी का रियल फॉर्म जो है, यानी जो आत्मा का स्वरूप है, वो है निर्विकल्प, यानी हमारा और कोई विकल्प नहीं हो सकता। निराकार, यानी हमारा कोई आकार भी नहीं होता। हाँ, हमने शरीर धारण किया हुआ है, उस शरीर की वजह से हमारा कुछ शेप है, लेकिन वो आत्मा का शेप नहीं है, वो शरीर का शेप है। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और ये जो आत्मा है वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, और सभी इंद्रियों के अंदर इसका वास होता है। सो अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। ये सबसे आखिरी में वो कहते हैं, सदा में समत्वम न मुक्ति न बद्ध। जैसे मैं हमें लास्ट टाइम मैंने कहा था योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के बारे में, वो यही था कि मेरे लिए, उनके लिए बीजेपी का कार्यकर्ता है या किसी और का कार्यकर्ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने कोई गलत किया है
तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और जिसने अच्छा काम किया है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। यानी सभी लोगों के अंदर आप एक समत्व के भाव से जब चीजों को देखने की शुरुआत करते हो, तो समाज के अंदर आप एक नई व्यवस्था पैदा करने की कोशिश करते हो। अदरवाइज 1947 से लेकर 2014 तक हम लोगों ने देखा है कि फेवरिज्म वाज अ बेसिक क्राइटेरिया। इवन आपको अगर 2016 के पहले की बात करूं, अगर आपको एमबीबीएस की सीट चाहिए तो आपको इतना लाख देना ही पड़ेगा, तो ही आपको एमबीबीएस की सीट मिलेगी। आज वैसा नहीं है 2022 के अंदर। तो ये जो सारे करोड़ों रुपए परिवर्तन, आज करोड़ों रुपए एमबीबीएस के लिए, आज एमएस के लिए मेरे फ्रेंड्स भी नहीं ये कर नहीं रहे हैं। आज नहीं नहीं आज एमबीबीएस के लिए आपको बिना मेरिट के आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने बिना मेरिट के अगर आपने सीट खरीदने की कोशिश भी की और बाई चांस मैनेजमेंट कोटा ने अगर आपको दे भी दिया, तो उसका कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। नहीं, आई एम करेक्टिंग यू नो, बिकॉज सी आई विल टेल यू, इन हाँ तेलंगाना हाँ कैटेगरी ए कैटेगरी बी सीट्स रहते थे, मिनिमम हाँ थाउजेंड्स में रहता था, और 1 लाख 2 लाख का था। जब ये गवर्नमेंट आने के बाद उसको 25 लाख 20 लाख तक चले, ये किया ऑफिशियली। दैट मीन्स नहीं मतलब जो बीइंग अ नहीं नहीं डॉक्टर माई आप, सेल्फ, नहीं, बीइंग हाँ अ सही सही डॉक्टर माई आपके पास, सेल्फ, करेक्ट, नहीं, listen to me, being a doctor myself, officially they have hiked the fees, and they have made even government colleges or even merit seats into capitation fee. Now I'm happy Supreme Court just last week they said nothing, no capitation fee can be collected, and they have fined Narayana Medical College when they went for capitation fee. But on the ground, are the governments changing it? No, not yet. yes. This is where, So because Modi no, is I would touring like, now, I want Mr. Modi to understand education can never be discriminated, and he has to see, because he has to see to that, he has to call for a meeting of every chief minister and tell them the right to education is a must, whether they have money or no money, whether they belong to this caste or that caste, or this religion or that religion. The basic quality education should be given to one and all, and it is the responsibility of any government and any party's manifesto. Similarly, health too. There is a yeah, discrimination. Our chief minister goes to Yashoda, and you expect us to go to normal this thing, and they don't give us insurance coverage. Where should we go? So this is what I'm trying to tell you, the discrimination. So there should be a proper I law. agree to this fact, but Tangiralji, Shiv Prasad Yeah, ji, yeah, I no, want you to tell you complete one. one, because I No, was no, just no, trying no. to On tell. this particular aspect which you talked about health education, I'll tell you. Recently, I have a patient. I'll not know, no, 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 Dr. no, no, Jignesh no. ji. Just I want to. This is for We your have to information. end. No, no, we have to end. In That you give Telangana, right different subject now, to a this. child has got an admission in medical college based on his merit, who has not a money even to pay my regular fees for the consultation. Okay, and all these thing is possible only because now the NIIT, previously that NEET used to be, every state used to take separate examinations. Now that system has been collapsed since 2018. Now No, no, all the exam again, here comes, also, again, states are going back to their own Tamil Nadu, and they are fighting. NEET also had some own discrepancies, but even with the so NEET also, here what no, you are let us talking not get about into that. is, Jignesh no ji, no 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 Jignesh no. ji, So please, I just want to government correct see, you in I this know, way. even NEET, no, no, all Doctor the sir, state chief ministers, all the state chief ministers have a power to implement certain policies in their own state, even if the central government has given the uniform policy for no, all the that's state. what, no, But no, many like it is corrupt like chief GST. ministers, It is like another GST. many, Medical no, no, admissions no, has no, become like no, another no, GST. Now let us not see. Let us not complicate this, because no, we no, have no, come what to I'm see. saying, no, 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 Shivrasad ji, what you're saying is that will be absolutely right. totally I different. don't deny I to can that. prove. Then I can prove with But the evidences. point NEET, is, lakhs of rupees we have to pay even after NEET also, except for one category admission. Rest we are paying lakhs. That is very bad, no, and no, that will come back. But because no, now, let the me not get management into that. quota, no, no, please Let me understand. not get into that, Doctor Please G. Let me understand. not get into that. The We will discuss. management quota is still continuing. No, 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 Doctor, Shivrasad ji, we'll please understand. continue that. No, no, that will, because superlative. Today's presentation is such I a think, wonderful presentation, I think and this we will I'll tell talk in you, the Raman because Rajya, Ram Rajya. When we'll talk about Raman Rajya and that Ram Rajya, will, yeah, that topic is there. yeah, Immediately we have to take yeah, up we have to take that yes, also, yes, because until yes, and unless you yes. At distinguish that time we will between talk in Ram details and about it. Ravan, until and you Yes, distinguish between Ram and Ravan, these type of yes, things will not come out. Common man sufferings. abs That is where we will absolutely, definitely discuss. absolutely, you're right. I agree to this. I agree to this.
Wonderful. So I'll come. यहाँ I'll पे come. आदि शंकराचार्य जी ने, yeah, let's so come back to the topic which we are talking about. Please go ahead. So आदि Finish it. शंकराचार्य जी कहते हैं कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वम न मुक्तिर न बद्ध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. सो ये जो चिदानंद स्वरूप है, इसका मतलब ये होता है सत अर्थात सत्य, चित्त अर्थात कॉन्शियसनेस कामनेस, और आनंद अर्थात हमेशा परफेक्शन या हमेशा सेटिस्फाइड सोल. सो ये जो जिस किसी इंसान के अंदर सत्य है, कामनेस ऑफ माइंड है और हमेशा आनंद में रहता है, वो आदमी को ही सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है, और इसी सच्चिदानंद स्वरूप को शिव कहा जाता है. सो शिवोहम शिवोहम, चूंकि कार्तिक मासम भी है और हम लोग कार्तिक मासम के अंदर शिव जी का स्पेशल पूजा करते हैं, लेकिन हम सभी के अंदर इस सच्चित आनंद को उजागर करना, यही शिव जी की रियल भक्ति है. डिस्क्राइब अब ये सारी और एक बार सच्चित आनंद रूप, इसका एक बार वर्णन कीजिए. सत्य का मतलब? सत्य का मतलब होता है सत्य, अर्थात सत्य. जिस इंसान के अंदर हमेशा सत्य है, वो हमेशा सत्य स्वरूप कहलाता है. चित्त का मतलब होता है आपका जब माइंड है ये एकदम काम हो जाता है, यानी आप अपनी जैसे द्वेष, नमे द्वेष रागो नमे लोभ मोह, जो मैंने कहा था, उन सारी चीजों से परे होकर के आप जब एक कामनेस ऑफ माइंड में आ जाते हो, यानी ये सब चीजों से आप बाहर हो जाते हो, तो आपका चित्त शांत हो जाता है. जब आप सत्य बोलते हो, आपका चित्त शांत है, तो आपके अंदर आनंद के अलावा, सेटिस्फेक्शन के अलावा, हैप्पीनेस के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. सो जब कभी इंसान के अंदर सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों का समन्वय हो जाता है, तब वो व्यक्ति इस माया रूपी संसार से बाहर निकल आता है, और वो बाहर निकलकर वो जो स्वरूप बनता है, उस स्वरूप को शिवोहम कहा गया, या उसी स्वरूप को शिव कहा गया है. Wonderful presentation. Hats off to you, Doctor. Satchidananda Rupam Shivoham Shivoham. Wonderful. What a better way to conclude. Everyone should be happy, and Yes. Thanks to you. No, I think, and last one thing I want to say something about. This is about our please. Shastra, because we were talking about our Sanskriti and our culture. Right. So हमारे संस्कृति के अंदर हर एक जो शब्द बोले जाते हैं, जाने हम दोनों ने भी जो कुछ भी बातचीत की, ये सिर्फ हमारे शब्दों की आदान प्रदान है. कुछ मैंने बोला, कुछ आपने सुना, कुछ आपने बोला, कुछ मैंने सुना. सो ये जो शब्द का जो विनिमय होता है, इसको भी चार स्वरूप में हमारे ग्रंथों के अंदर या हमारे वेदों के अंदर बताया गया है. एक होता है शब्दार्थ, अर्थात सिनोनिम, हम जो बोलते हैं वो उसका जो मीनिंग होता है या उसका जो पास का जो शब्द होता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं. दूसरा होता है भावार्थ, अर्थात आप एक बड़ी सी कहानी कहते हो, लेकिन उस कहानी के अंदर जो भाव है, अर्थात उसके अंदर जो इमोशंस है, वो क्या उसमें इन्वॉल्व है. तीसरा होता है तत्वार्थ, अर्थात लेसन या लर्निंग, जैसे कहानी सुनाई जाती है, तो उस कहानी का जो सार होता है, वो सार आप वहां से लेने की कोशिश करते हो कि हाँ ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा आपको नहीं करना चाहिए. और चौथा होता है गुणार्थ, अर्थात हिडन ट्रूथ. हमारे शास्त्रों के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम इसी चार में से किसी एक तरह से इसका अध्ययन करते हैं. ज्यादातर हम हमारे शास्त्रों को सिर्फ शब्दार्थ तक ही समझने की कोशिश करते हैं, उसके भावार्थ, तत्वार्थ और गुणार्थ को जब नहीं समझते हैं, तब हम हमारे ही संस्कृति को, हमारे ही कल्चर को, हमारी ही परंपराओं को क्वेश्चन मार्क पे करना शुरू कर देते हैं. Wonderful. This is ultimate. Shabdarth, Bhavarth, Tatvarth, Gudarth, whatever it is. तो गुणार्थ जो है, गुण अर्थ मतलब जो चीज बहुत छुपा हुआ रहता है, इसको मेहनत करके फाइंड आउट करना होता है, और ये हर इंसान को खुद को करना चाहिए. वो हमें करके दे देगा, ये हमें बना के दे देगा, ऐसा नहीं होता है. Right. Wonderful. तो ये हर इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जीवन को किस तरह से उन्नत बनाए, किस तरह से अपने परिवार को उन्नत बनाए, किस तरीके से पूरे सोसाइटी को उन्नत बनाए. ये सभी का उन्नति करने का काम उसका खुद का है. Wonderful, sir. Thank you very, very much. Wonderful presentation. So I'll just come back and I don't need to give anything more than what you have already
discussed here, because I can only say I was just enjoying what Dr. Jignesh Gokani was presenting, because after a long time I wanted to do something on Adi Shankaracharya. Having, I've told you, Okay. I'm son-in-law of Kerala. I'm married. My wife hails Yes. from Kottayam, Kerala. And whenever you go from airport, or Okay. whenever you start going from Hyderabad to our town in Pala, Kerala, you pass this Adi Shankaracharya. Okay. When I go just to the left, when I come back to Hyderabad, it is to my right. And I did take my children, and I've Okay. showed them what it is like, and they were for it. I Okay. said the philosophy of Hinduism, Advaitvam or Dvaitam. If you ever get confused, you better visit Adi Shankaracharya Center. Correct. He gives you a clarity, Correct. Absolutely. whether you are one or you are two. Once you understand Yes. what is Dvaitvam, what is Advaitvam of Adi Shankaracharya philosophy, you understood your life, your past, your present, and your future. That means Yes. Sat Chidananda Rupam Shiva. Shivoham Shivoham. 9th century Adi Shankaracharya ji, in 9th century, our thousands of years old tradition, our Sanskriti, he has converted that in 9th century now into the modern text we call Sat Chidananda Rupam Shivoham Oh, Shivoham. God bless you all. Wonderful hosting, Jignesh Gokani. Don't worry, we were just trying to speak something on what is happening in the state, what is happening at the correct. center. We'll No, no, come we'll back. definitely do a separate Rajya, program for Ram Rajya and Ravan Rajya. Ram Raj versus Ravan Raj. We are going to come. I'm not Yes. going to leave Dr. Jignesh Gokani ji, because Yes. now he has Yes. to run to attend PM's Yes. meeting. So I'm leaving him Yes. now because it has been a long thing. I hope these are all treasures. So much of information. This is what we want. Wonderful guests who participate on DRTSPR channels. They come prepared. See, he has taken so much of time, and he has shown you every slide what it means. Simplified so that commoners can understand. Information, once you understand, then he clearly said the Satya. Once you understand the Satya, the Chit, that calmness will come. Once that calmness comes into your body, you will become very, very happy. That is what is life is all about. Santosham sagam balam. We say, if you are happy, 50% of all your things are gone. Let us put that into practice now. At least after this show, I hope everyone will understand there is no caste, creed, or religion. It is only by your four, how they have divided. Brahmins, what are they? And Sudras, what are they? Not by caste, not by caste, by the professions or whatever you are inclined to take up. You become a Brahmin or a Shudra, and you change, interchange. There is no specific thing called who are trying to impose that. Let us come out of these bonds to understand Adi Shankaracharya's ultimate goal. Sat Chidananda Rupam Shiva. Shivoham Shivoham. Do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channel. They are all in larger public interest. As reiterated, we have been inviting guests who oppose us. You are most welcome to participate, because at every flyer I leave my mobile number. And even if you add more and more information, you are also most welcome, because there is no enmity or animosity against individuals, parties, or organizations. All issues are per rule of law, constitution, invoking evidential act. And what a better way to bring our ancient traditions, that knowledge, in this form here today, Dr. Jignesh Gokani. Thank you very much. Take care. And we will Thank you. always say, now this happiness after watching this, we say always Sukha Nidra, Shubharatri. And the world over should be a wake up call for all of you before you go to bed. That's why we say good morning, good afternoon, and good evening. And being into Ayappa Diksha, definitely I would love to say Swami Sharanam Ayyappa. Very well. Thank you, sir. Thank you Thank you so much. very much.